I, Ashish Bhati, would like to welcome Mr. Abhishek Sharma sir, owner of Learning Saint Private Limited, Mr. Hemant Mishra and Ms. Monica Sharma, Head of Academic Alliances. Abhishek Sharma sir is the founder and CEO of Learning Saint Private Limited, a visionary leader in the education sector with years of experience in skill development and career mentoring. Dedicated to bridging the gap between academic learning and professional success. Under his leadership, Learning Saint has trained thousands of students, enabling them to secure position in their dream companies. I would like to welcome Head of CRD, Mr. Abhishek Sharma sir, to welcome our today's guest with the Tulsi sampling. Now, I would like to request our today's speaker, Mr. Abhishek Sharma sir, to please come on the dais. What's your name? Sir Aditya Sharma. Can we have a round of applause here? Good afternoon. So you have to introduce yourself in 30 seconds. Okay, start. Good afternoon all of you. My name is Aditya Sharma and at present I am pursuing MBA and I completed my graduation from Delhi University, and when it comes to my skill, I try to initiate first whether right or wrong without taking care of it, and my weakness is that I procrastinate my task, and there are many opportunities which is ongoing and sometimes which are provided to me accidentally, as I got an opportunity at present for introducing myself, so I like to have opportunities. Thank you. Hello everyone, myself Vikas Yadav and I am from Azamgarh, and right now I am pursuing my MBA from MIT Greater Noida, and I done my bachelor degree from Mahatma Gandhi Kashi University, Varanasi. And good afternoon everyone, my name is Prince Srivastava and I belong to Sonali Nepal border, and I am pursuing MBA from Mangalore Institute of Management Technology, and it's a great opportunity for me to get a chance to introduce myself. Thank you. Good morning to all of you. I'm first of all said to give me this opportunity to introduce myself. So my name is Aniyansa. I am from East Champaran, Bihar. Currently I have done BA from Misra College of Business Management in Muzaffarpur, and I am pursuing MBA in Mangalore Institute of Management and Technology. So my strength is that I am a hardworking and self-motivated person, and my goal is to get a job in a reputed company like as a TCS, and my short-term goal is to complete it and to get a good marks in my last MBA examination. So that's all about me. Thank you. Thank you. Yes, Okay, maybe you are good in your domain. I have no doubt. You are a good coder, you are a good businessman, you are a good entrepreneur, whatever you're doing, you're best at it. But it really matters a lot that how you present yourself before anyone, right? So when someone calls you on a stage, or even in your general life when you're talking with someone, there are few gestures, there are some postures. There is a way of speaking. You have to control your rate of speech. You have to be better with the modulation of words and the diction of words, right? So is this something that you can learn in the college? No. No. See, we do not have any dedicated class for personality development. That is why I am standing here to introduce you with the personality development program introduced by Learning Saint. So this is the first time in India we have designed a program wherein we are not only teaching you the English speaking and communication skills, we are here to make you a perfect human being. Now how is that possible? I'll tell you. See, so for example, you are a BTech, you have done your engineering. Now, welcome to corporate life, you're there for the interview. The very first step to get a job is going to give the interview, qualifying the interview. That's the first step where the PDB is required. After that, welcome to the corporate life. When you are here in the office, you have to greet your bosses, you have to greet your managers, your team leaders, you have to talk with your colleagues. For that, you need a proper guidance that how to survive in corporate, right? People get offended at the senior level when you don't talk politely. Maybe I can speak good English, that's not a problem, anyone can speak good English, but is that English enough
to introduce myself before someone or to show my gesture posture to someone. No, that's not. You have to understand the difference between a normal English and the English or the communication skills. That's the part of the corporate life. Correct? Now, I'll show you that what is the level of the communication skills that we know and what is actually required in the market. Okay, so anyone from you can tell me the pronunciation of month's name, January and February. Anyone from you? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Is that enough? Okay, days name as well, Sunday, Monday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Thank you. See, when we write this in Hindi, how we write this? January. And how we are reading this in English? We will be reading it at January. January. What is the spelling of January? It's January, which stands for January. January. February. March. April. May. June. Then? No, it's July. July is something that we write in Hindi. August. September, October, November. It's not November. November is Hindi. December. Correct? Now, see, I'm not blaming you guys, neither I'm blaming the education system. This is what we have in India. This has been taught to all of us, including me when I was in the 7th standard, 8th standard in my school. I've done my schooling from UP both Hindi medium, of course. So there was no English culture. Right. So I have been taught this only, but now how I can speak like this, I have learned. I have improvised my communication skills in a way that's required in today's generation. Right. Now coming to the month, day's name, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. It's not Saturday. Loud sound है क्या Saturday. Let's start from ground level now. किसी को ABCD आती है? Alphabets? Anyone from you? Yes, please come on the stage. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, G. कोई और बोलना चाहेगा? ये तो गलत था वैसे. कोई और? Anyone else want to try with a better English? I'll tell you. See, now this is the problem. जब हम alphabets का pronunciation नहीं जानते हैं, तो हम फिर कैसे किसी word को या sentence को pronunciate कर सकते हैं? Sentences कैसे बनते हैं? Words से बनते हैं. Words कैसे बनते हैं? Letters से बनते हैं. तो जब हम letters को सही pronounce नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो words नहीं आने. I'll tell you the right pronunciation. It's A. Repeat with me. A. B. C. D. E. क्या आता है उसके बाद? F. F. फिर देखो यहाँ पे हम जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें हिंदी जोड़ देते हैं. It's F. G. Then H. I. हम क्या बोलते हैं? I. J. K. फिर L. M. N. O. P. फिर Q. R. S. S नहीं. S. T. U. V. उसके बाद अच्छा अभी सुनो साइलेंस W किसी का नाम होता है यार. It's W. ला तो उसमें होता ही नहीं है. W X Y Z. अब एक धारणा है, बहुत सारे लोग Z को Z बोलते हैं, बहुत सारे Z बोलते हैं. तो Z और Z दोनों ही सही होते हैं. ये वेस्टर्न कल्चर से आया है, मतलब यूएस से आया है.
जी, आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। You know what have been taught to you. जो आपको सिखाया गया आपको वही आता है। ऐसा नहीं है ना कि आपको सिखाया गया आपने सीखा नहीं। अभी भी आप MBA कर रहे हो, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? जो भी है समझ में नहीं आया, वो जो भी है वो सब कुछ सबको आता होगा। I have no doubt, you guys are best. The only problem here is that you do not know कि सही क्या है और गलत क्या है। Now here comes learning saying, wherein we teach you the correct English. अब ये बहुत बेसिक चीज हो सकती है किसी के लिए कि अब इतने बड़े हो गए, MBA कर लिया, अब इसके बाद क्या इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो मैंने तुम्हें डिफरेंस समझा दिया। जो इंग्लिश तुम बोलते हो, जो मैं बोलता हूँ, उसमें बहुत सारा अंतर है। एक एग्जांपल और देता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, किससे पूछूं? चलो किसी को बुला लेते हैं। कौन आएगा भाई? वॉलंटियरली हु वांट टू कम ऑन द स्टेज? अभी पाठक जी, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो आपका आंसर क्या होगा? My name is Ritesh Pathak. आगे लीजिए। My name is Ritesh Pathak. इसको किसी और तरह से बोल सकते हैं। I Ritesh Pathak. I am Ritesh Pathak. और Myself Ritesh Pathak. और अच्छा चलो, मैं ये जो हम बात कर रहे थे उसको रोक के सेल्फ के बारे में कुछ बताता हूँ। SELF सेल्फ। सेल्फ सिर्फ उन लोगों को लगाना चाहिए अपने नाम के साथ जो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। आप कहोगे हम तो अपने पैरों पे ही खड़े हैं। मतलब when you are dependent on your parents or your siblings or someone, so you use name. Self is when you are self-made person. Like for example, I'm working. For example, I'm sitting there, or your teachers they are working here, right? They can use self. For us, it should be name. अब वो self थोड़ा fancy लगता है बोलने में, इसीलिए हम self लगाते हैं, है ना? अच्छा चलो, यही चीज हिंदी में बोलो। अगर मैंने आपसे पूछा है कि आपका नाम क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा नाम रितेश पाठक है। और यही समय हुआ आपका। अब मैंने हिंदी में अगर सवाल पूछा है कि आपका नाम क्या है, तो आइदर आप बोल सकते हो मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, या आप इसको थोड़ा बेटर करके बोल सकते हो जहां तक मेरे नाम का संबंध है मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। Which is better, first one or second one? Second. Why? It sounds better. It sounds different. It sounds unique. And when you speak this before someone, they notice you, because there are hundreds of people saying the same thing. My name is Abhishek Sharma, but you were different, saying something different. So you stand out. अब मैंने क्या बोला था पहले ही, मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती। You know English better than me. I agree on that point. The only difference is कि गाइडेंस करनी है कि क्या बोलना है। अगर वो सिखा दिया जाए तो फिर सब कुछ आता है। इंग्लिश हम सबको आती है। We all know sentence formation. We are not kids. We are studying in the greatest college of Greater Noida. तो फिर तो इंग्लिश तो आती होगी ना। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है कि कहाँ पे क्या बोलना है। अब मैंने क्या बोला? As far as my name is concerned, my name is Abhishek Sharma. अब मैम आप खड़े थे, आपने बताया था ना? हाँ। तो जैसे हमने इसको नाम के साथ लगाया है, बाकी चीजों के साथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, if I ask you which is your favorite color, so what will be your answer? As far as my favorite color is concerned, as far as my favorite color is concerned, my favorite color is black. क्या बात है? देखो, मतलब कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका आंसर फैंसी हो सकता है। बैठ जाओ, थैंक यू। बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? I am totally against a fact. लोग ऐसा कहते हैं कि when you know English, आपको अगर इंग्लिश आती है तो you are an intelligent person. ये बिल्कुल सच नहीं है। Someone can be a very intelligent person, but he cannot be a good English speaker. It's very normal. But अभी अगर 21st century में आज के जनरेशन की बात करोगे, corporates की बात करोगे, you all are here for job. That's a single purpose. ठीक है? तो अभी रिसेंटली लर्निंग सेंटर ने यहाँ पे ड्राइव करना करी थी। We conducted so many interviews here. तो एक फीडबैक आया मेरे पास HR टीम से कि यहाँ के बच्चों की इंग्लिश ठीक है, बट वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आइदर वो हेजिटेट हो रहे हैं या फिर वो इंग्लिश बोल रहे हैं जो स्कूलों में बोली जाती है, कॉलेजेस में बोली जाती है। ठीक है, तो फिर अगर हम इसको कंपनी में लेके आते हैं तो हमें 2 या 3 महीने में सिखाना पड़ेगा। तो अब फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूलिंग कर ली, आपने कॉलेज पढ़ लिया, अब अल्टीमेट गोल है सबका जॉब करना। वहाँ पे फिर नहीं होता, वहाँ पे दे want everything from you. मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो सिर्फ कोडिंग आनी चाहिए। No, no, no. You don't have to know coding only. You have to be a good communicator as well. You have to be well dressed up. अभी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हैंडशेक समझते हो? हैंडशेक, हाथ मिलाना। How many types of handshakes are there? किसी को पता है कि आपको एक लड़की से कैसे हाथ मिलाना है?
हाउ यू ग्रीट अ मैन, जब आप दोस्तों से मिलते हो तो हाथ कैसे मिलाते हो, जब आप किसी प्रोफेशनल इंसान से मिलते हो तो कैसे हाथ मिलाते हो, किसी से पहली बार मिलते हो तो कैसे हाथ मिलाते हो, आपका बॉस है उसे भी हाथ मिलाना है। आप जैसे हम जनरली दोस्तों से मिलते हैं तो ऐसे हाथ मिला के फिर ऐसे पीठ पे टैप करते हैं ना, तो आप अपने बॉस से ऐसा करोगे तो डोमिनेट कर दिया तो नहीं हो सकता ना। तो वी शुड नो ऑल दीज जेस्चर्स। टेबल एटिकेट्स, हम में से किसी को भी नहीं पता होगा कि जब हम टेबल पे खाना खाते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ पे जो फोक और नाइफ होता है उसका भी एक लैंग्वेज होता है। When you place it like this, it means different. When you place it like this, it means different. किसी को पता है? हो सकता है किसी एक या दो इंसान को पता हो, जो लोग बहुत रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। बट अब फिर ये सवाल आता है कि क्या ये पता होना चाहिए? होना चाहिए, because this is the part of our society. हम कितना इवॉल्व कर चुके हैं। आप सब बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हो, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो। जब आज से 10 साल 12 साल पहले इमेजिन करो जब फोन्स वगैरह नहीं होते थे, तब लाइफ कैसी थी? सिंपल सॉर्टेड, बाहर बच्चे खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। अभी कोई वैसा करता है क्या? We all are involved. अब हम सिर्फ फोन्स चलाते हैं, कुछ लोग रील्स बनाते हो, कुछ लोग रील्स देखते हो, है ना? तो टाइम के साथ चीजें ना इवॉल्व होती जा रही हैं। जब हमसे कोई इंग्लिश में बात करता है तो किसी की इंग्लिश तो बहुत अच्छी होगी यहाँ पे, कुछ लोगों की, कुछ लोग जो नहीं बोल पाते हो उनके साथ प्रॉब्लम ये है, उन्हें पहले उसको हिंदी में समझना पड़ता है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर उन्हें रिप्लाई करना है तो पहले वो हिंदी में जवाब सोचेंगे, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसके बाद डिलीवर करेंगे। अब क्या कोई सामने वाला इंसान 1 या 1.5 मिनट आपको देगा क्या? वो ट्रेन निकल गई, ठीक है? तो हम इंग्लिश अच्छी कब बोल सकते हैं? जब हम इंग्लिश में सोचना चालू कर दें। हिंदी बोलने के लिए हमें सोचना पड़ता है क्या? मन में आया, हो गया थॉट। अच्छा, एक बच्चा जो यूएस में पैदा हो रहा है या यूके में पैदा हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या वो इंग्लिश सीखता होगा? क्यों? एटमॉस्फेयर, भाई उन्हें वैसा एटमॉस्फेयर मिला तो उन्हें इंग्लिश आती है, हमें वैसा एटमॉस्फेयर मिला तो हमें हिंदी आती है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट एटमॉस्फेयर दैट यू गेट। अब या तो कॉलेज ने एक ऐसा रूल बनाया होता है कि कोई हिंदी बोलेगा तो 500 रुपए का फाइन लगेगा, वो भी नहीं दोगे, स्कूल आना मत कर दोगे, कॉलेज जाना मत कर दोगे। हम नहीं सीखेंगे, हम नीट है, कोई कितना भी समझा ले, हमें सीखना ही नहीं। या चलो 4th सेमेस्टर के बाद जब आओगे, खत्म हो जाएगा सब, एग्जाम वगैरह हो जाएगा, तब इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है? देन यू विल रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। खाना खाते हो घर में? खाते हो ना? ठीक। तो कभी भी खाना खाते हो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा धनिया डालो तो अच्छा लगता है देखने में। दैट्स कॉल्ड गार्निशिंग, ठीक है? तो इंग्लिश, यू नो, इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ गार्निशमेंट। जब उसमें गार्निशमेंट आ जाएगा तो वो अच्छी दिखने लगती है, अच्छी साउंड करने लगती है। समझ में आया? अच्छा, एक छोटा सा सवाल है मेरा, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 26, very good. How many are vowels and how many are consonants? सबको पता है? बहुत सारे बच्चे रहेंगे यहाँ पे जिनको नहीं पता होगा कि vowels को vowels क्यों कहते हैं। It's all कि हमारे दिमाग में कभी क्यूरियोसिटी भी नहीं आती। कोई चीज है जो हम यूज कर रहे हैं या बोल रहे हैं या जिस चीज के बारे में हम जानते हैं लेकिन हमें पता नहीं वो कैसे रहा है। वॉवेल्स के साथ क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो साउंड्स होते हैं ये सारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। बी बोलो, सी बोलो, डी बोलो, एफ बोलो, आ रहा है ना ए वाला साउंड, ठीक है? बट जो ये वॉवेल्स हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके साथ कोई कॉन्सोनेंट साउंड तो नहीं आता, इसीलिए इन्हें सेपरेट किया गया। अब यहाँ पे हो सकता है 50% या 60% लोगों को पता हो लेकिन 40% को नहीं पता होता, ठीक है? तो दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको चीजों को रियलाइज करना सीखना हो, ठीक है? देखो, एक तो होती है डग्गेमारी वाली पढ़ाई, जहाँ पे एक टीचर आया, उसने बोर्ड पे आपको पढ़ा दिया, आपने सीख लिया, बात खत्म, सीखा नहीं सीखा, बात खत्म। लेकिन एक ऐसा टीचर जो आपको सोचना सिखाए, आपको ये सिखाए कि चीजों में कैसे घुसना है, उनसे रिलेट कैसे करना है, तो वो होता है सही तरीका। समझे? मतलब मैं तुम्हें क्यों उंगली पकड़ाऊं अपनी, मैं क्यों कहूं तुम मेरी उंगली पकड़ के चलो, नहीं मैं नहीं उठाऊंगा तुम्हें, तुम खड़े हो जाओ ना अपने पैरों पे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन किया जाएगा, बट यू शुड स्टैंड ऑन योर ओन। कब तक डिपेंडेंट हो जाओगे किसी पे? समझे मेरी बात, है ना? यू मे नो इंग्लिश बट यू डोंट नो हाउ टू फेस पीपल। अब अगर मैं यहाँ पे बुला के खड़ा करूँ तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 100 बच्चे बैठे होंगे, लगभग 100 लोगों के सामने भी खड़े होकर आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। अगेन द पॉइंट इज, यू नो, आपको इंग्लिश आती है तो मैं कहीं नहीं रहा हूँ इंग्लिश सिखानी है मुझे। यू डोंट नीड द बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर, यू नीड अ पर्सन टू गाइड यू कि कैसे सामने खड़े होकर ऐसे 1000 लोग भी बैठे हैं तो उनकी आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट बना के कॉन्फिडेंटली मैं जो बोलना चाहूँ मैं बोल सकता हूँ।
ये सिखाने वाला है क्या कोई? और ये आ जाए तो फिर सब कुछ आता है। A person knows public speaking become Modi, Narendra Modi. Why he is so famous? बताओ। बोलना आता है ऐसे कुछ और कुछ है क्या? बताओ। देखो पॉलिटिशियन तो सारे के सारे हैं, सब पॉलिटिक्स करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, देश चलाना भी सबको आता है। बट एक इंसान जो बिल्कुल स्टैंड आउट कर रहा है वो नरेंद्र मोदी। कैसे? बोलना आता है, अच्छा बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। आज के जमाने में मुझे लगता है इंडिया में कम से कम 3 से 4% लोग सिर्फ YouTube पे पब्लिक स्पीकिंग करके कितना पैसा कमा रहे होंगे। कितने सारे ऐसे YouTube चैनल्स होंगे जहाँ पे लोग कुछ नहीं करते हैं, कोई प्रोडक्ट रिव्यू करता होगा, कोई टिप्स दे देता होगा, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम नहीं कर सकते क्या? लेकिन हम कैमरा फेस नहीं कर पाएंगे ना। कैमरा चालू कर दिया तो फिर वही होगा जो भी कर ही रहे हैं कुछ। सोचो तो इट्स नॉट कि आप एमबीए कर रहे हो तो उसके पास जॉब ही है एक ऑप्शन कि जॉब करोगे तो पैसा कमाओगे। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि when you have a good communication skills, मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती। और दूसरी एक बात मैं और बता देता हूँ, दुनिया में इंग्लिश कोई टीचर आपको सिखा नहीं सकता, मैं खुद कह रहा हूँ, सीखनी खुद ही पड़ती है। बस तरीके बताए जा सकते हैं कि क्या वो सही तरीका है जो मैं आपको बताऊं जिसे प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, ठीक है, कोई भी आप मैथमेटिक्स में जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे, जब 10-20 बार कर लेते हो ना तो उसमें बिल्कुल स्किल सेट बन गया, वो महारत हासिल हो गई उसमें। अब वो फिर कैसी भी प्रॉब्लम हो उस चीज से रिलेटेड कर लोगे। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इट्स दैट सिंपल। मैथमेटिक्स कैसे आती है? प्रैक्टिस से आती है। तो सिमिलर गोज विद इंग्लिश एज वेल। अगर आप ज्यादा बोलते हो, अब वही आपको एनवायरनमेंट मिला है, दिन भर वही बातें कर रहे हो, तो क्यों नहीं आएगी। फिर उसके बाद जब इंग्लिश आ गई, अब नाउ इज द टाइम व्हेन यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। वो पब्लिक स्पीकिंग वाली चीज वो इंपॉर्टेंट क्यों है? तो माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के लिए इंटरव्यू पता है कितने राउंड्स का होता है? 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट। जिसको भी पता है उसने बहुत रिसर्च करी है। 7 राउंड्स में 2 राउंड्स होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के। द फर्स्ट राउंड इज एचआर राउंड, और उसके बाद एक राउंड होता है जिसमें सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स ही जज करी जाती है। थर्ड या फोर्थ जो भी होता है। एक होता है वर्सेंट राउंड। वर्सेंट समझते हो? नहीं आता, मैं बता देता हूँ। जितनी भी एमएनसीज होती है वहां पे एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं वर्सेंट। दैट्स थर्ड और फोर्थ राउंड ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन भी चेक किया जाता है कि आपको ग्रामर कितनी आती है और इंग्लिश कितनी आती है। अब दोनों साइमल्टेनियसली साथ में चलती है, ठीक है। तो अब जिसको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है या गूगल में करनी है या टेस्ला में करनी है, तो उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। सोचो। और उसमें भी पता है पैनल होता है इंटरव्यू का। यूजुअली कंपनीज जब इंटरव्यू होता है नॉर्मल कंपनीज में तो एक इंसान होता है, मैक्स टू मैक्स 2। जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में इंटरव्यू देते हैं तो एक पैनल होता है। इट्स लाइक 4 और 5 पीपल। अब 5 लोगों के सामने मुझे अपने आप के बारे में कुछ बोलना है तो इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। क्यों? क्योंकि मैं तो एक इंसान के सामने नहीं बोल पा रहा हूँ। वो मेरे लिए तो पब्लिक स्पीकिंग हो गया ना, 5 लोग मेरे लिए पब्लिक हो गई। अब मैं उनको देख रहा हूँ, कोई मुझे अमराज जैसा लग रहा है, कोई मुझे देवदत्त जैसा लग रहा है, मैं कैसे बोलूँ? मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। थॉट्स मेरे चले गए, ताले जमीन पर उड़ रहे हैं अल्फाबेट्स, समझे? कभी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा है किसी ने? एक बार अगर अपनी इंग्लिश का स्तर सही चेक करना है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद लेना, उसमें से एक कोई पैराग्राफ उठा लेना, ठीक है, और उसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ कम से कम 10 वर्ड्स तुम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो तुम लोगों ने कभी सुने नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल एक वर्ड ले लेते हैं बिजार, सुना है कभी? क्या होता है? हाँ, पता नहीं होगी। BIZZAR बिजार क्या मतलब होता है इसका? बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंजर, अजनबी इंसान। वो वाला बिजार नहीं बता रहा जो तुम लोग बोल रहे हो 4 करोड़ दुनियादारी बता रहे हो। बिजार यानी स्ट्रेंजर। ये एक सिंपल वर्ड मैंने दिया है लोगों को। पर हमारे आसपास इतनी चीजें इंग्लिश में होती है हम देखते नहीं। एक गाड़ी आती थी पहले, सिटी डाउन, देखिए किसी ने? सिटी डाउन डाउन मतलब क्या होता है? नहीं पता? नहीं पता होगा। सोचो हमारे आसपास इतनी सारी इंग्लिश है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम एक्चुअल में इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल जब घर बनता है तो पिलर्स बनते हैं, दीवारें बनती हैं, फिर उसके ऊपर ऐसे एक रूफ डालते हैं। उस रूफ को क्या बोलते हैं? नहीं, तो इंग्लिश हो गया यार। एक हिंदी में वर्ड बोलते हैं ना, लिंटर। वो एक्चुअल में इंग्लिश वर्ड था। कैसे था मैं समझाता हूँ। इट वाज लिंटल, LINTEL, लिंटल। लिंटल
बोलते 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 लेटर हो गया। कब हो गया पता ही नहीं चला। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे अराउंड भी बहुत सारे इंग्लिश जो बोली जाती है। अब वो कैसे आती है उन लोगों को? क्वेश्चन मतलब जो मैं समझाना चाहता था, ये समझाना चाहता था कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी इंग्लिश बोल रहे हैं, जो उन्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कल्चर चला आ रहा है, पास ऑन होता चला आ रहा है ना। उनके पहले जाने कितने लोगों ने बोला होगा, तो वो बोलते चले जा रहे हैं। इससे क्या समझ में आता है? द प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट इन एनीवेयर, द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। अब क्योंकि वो बोलते तो हमने भी वही सीखा होगा, ठीक है। अगर हमने वो सीखा तो अगर वो प्योर इंग्लिश बोलते तो वो सीख जाते। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को जज करते होंगे। हम अपने आप को खुद जज करते हैं, यार नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। जैसे मुझे भी लगता था ना, इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती, इंग्लिश इज समथिंग मेरे बस की तो नहीं है, मैं तो सीख ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। लेकिन क्या नहीं बोली? क्या बोली? हाउ आई लर्न, आई गिवन माय सो मच ऑफ टाइम इन लर्निंग, ठीक है। अब आती है कॉन्फिडेंस की बात कि अब एजुकेशन होता है पब्लिक स्पीकिंग में, वो कैसे करें? क्योंकि अब जैसे मेरे साथ था, मुझे कुछ बोलना था तो मैं वॉशरूम गया मैं, और वहां पे मैं बैठ के बोलता था माय नेम इज अभिषेक शर्मा, आई स्टडी इन दिस स्कूल, चिल्ला के। तो मम्मी बाहर घुसता और उससे बच्चा पागल हो गया है, ठीक है। इंग्लिश में बड़बड़ा करता है, अकेले बातें करता है, पर ये सब तो सुनना पड़ेगा। सबके घर में मिरर है, शीशे के सामने खड़े होकर अगर आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो बिना मुस्कुराए, तो आप 1000 लोगों के सामने बोल लोगे। कभी ट्राई किया है? बोल लेते हो? तो फिर यहाँ भी बोल लोगे। इसके बाद थर्ड क्या है कि अब जब दोस्तों से मिलते हैं डेली, तो आपस में ही एक रूल बना लो ना भाई, तुम सबको अल्टीमेटली तो जॉब या बिजनेस में जाना है, सबको पता है, तो एक दूसरे का नुकसान क्यों करा रहे हो? फायदा कराओ ना, एक दूसरे से इंग्लिश में बात करना चालू कर दो। इट्स दैट सिंपल। नहीं कर सकते क्या? एनवायरनमेंट तो हम खुद बनाते हैं ना, एनवायरनमेंट लोगों से होता है। जरूरी है कि हम वहां से 50 फॉरेनर्स को हायर करें कॉलेज में, फिर उनसे इंग्लिश में बात करें? हम आपस में बात करेंगे। इसका फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल 3 या 4 लोगों का ग्रुप होता है कॉलेज में, सब 3-3, 4-4 दोस्त बैठते हुए बेंच पे, ठीक है। अब कोई एक इंसान हो सकता है कि गलत बोले, तो दूसरा उसे करेक्ट कर सकता है। जब आप बोलोगे नहीं तो आपको करेक्ट कौन करेगा? अपनी टीचर से आप इंग्लिश में बात करो, किसी को लगेगा आप गलत हो तो वो आपको तुरंत करेक्ट कर देंगे, समझे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बोलना प्रेफर नहीं करते। तो किसी के पास कोई थॉट है, कुछ कहना चाहता है? कोई क्वेश्चन हो मेरे बारे में या किसी मेरी कंपनी के बारे में या किसी चीज के बारे में? Anything that you want to share with us? Yes, please. Sir, as you discussed here about corporate life and regular life, corporate language and regular language is quite different from each other. Yeah. There is, and if it is so, is there any proper structure regarding that, sir? मतलब is your question related to communication only? Yes, sir. Communication. See, बैठो, बहुत बढ़िया सवाल है। See, there is no structure that have to be followed. It's just that you have to be confident enough to place the word, right? See, I'll tell you. So what happens when you join a company? There are 20 other people working, right? In fact, from your company, so many people will be going in the same company. It happens multiple times. So the only thing that creates a problem is a competition. There would be lot of people proving themselves in front of the bosses to impress them, to get the salary hike, to get the promotions. So whether you would be someone suppressing your feelings, suppressing yourself, sitting and just working idle, or you're someone taking the charge of everything and proving your boss every day that you are different from the league, you're someone that can prove everything that's required, right? कहने का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत कंपटीशन है, ठीक है। हर इंसान अपने आप को प्रूव करना चाहता है, ठीक। अब जब वो प्रूव करना चाहता है तो वहां पे कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस इसलिए आता है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक ऐसी कंपनी है जहां पे आपको मीटिंग्स करनी है लोगों से। कोई भी कंपनी चलती है बिजनेस से, और कोई भी प्रोफाइल में ग्रोथ होती है बिजनेस लाने से, ठीक है। तो इफ यू हैव समवन जिसका काम है बिजनेस लाना, क्लाइंट डील करना, क्लाइंट से डीलिंग करना, लोगों से बातें करना, कोई भी डिपार्टमेंट हो, यहाँ पे ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। अब वहां पे अगर आपके पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाला प्रॉब्लम है तो फिर आप कैसे चीजों को करोगे मैनेज? एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर कम्युनिकेट इंग्लिश में करना चाहिए, हिंदी बोलना है। अगर हम कॉन्फिडेंस नहीं है तो इंग्लिश में भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उससे और कॉन्फिडेंस से तो हिंदी में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। आप तो इंटरव्यू लेते हो, आप क्या चाहते हो? बहुत ही बढ़िया सवाल है इनका। देखो इसका सिंपल आंसर ये है कि इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी फैक्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हाँ एक सेकंड होल्ड योर हॉर्सेस, अगर हम कहीं फैक्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में बोलने का रीजन ये होता है कि किसी भी कंपनी में आज के दिन इंग्लिश का यूज होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा हो, ठीक है। और
कॉन्फिडेंस अगर है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में जवाब दे सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आप इंग्लिश में ही जवाब देना, क्योंकि हिंदी में बोलोगे तो इंटरव्यू में खुद ही आपको टोक देगा, कैन यू प्लीज टॉक इन इंग्लिश, कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, सबसे पहले यही आता है। ठीक है, मतलब 99% कंपनीज इंग्लिश में ही इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, कोई 1-2% होंगी तो वो होंगी जो बहुत छोटी कंपनीज है जहाँ पे इंग्लिश का कोई यूज नहीं है। समझे कि नहीं समझे? और बताइए और क्या सवाल है किसी के पास? सर लिंक्डइन के बारे में बता दीजिए। जैसे आपने कम्युनिकेशन बता दिया, रिज्यूमे बता रहे, लिंक्डइन में क्या पोस्ट कर सकते हैं, कैसे मेंटेनेंस मतलब होता है ना, क्या क्या डाल सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। और ये सोशल मीडिया टाइप के उसमें पोस्ट कर सकते हैं कि नहीं एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या क्या करना डाल ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा पैशन है फोटोग्राफी, ठीक है, मुझे फोटोग्राफ खींचना बहुत अच्छा लगता है, या फिर मेरा पैशन है ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। अब पैशन भी उसी चीज को बनाना है जैसे तुम्हें जिस फील्ड में जाना हो, ये बहुत एडवाइजेबल है। फॉर एग्जांपल बनना तुम्हें ग्राफिक डिजाइनर है और पैशन तुम्हारा डांसिंग है, फिर वो मजा नहीं आएगा ना। एक चीज को पैशन बनाओ जिस पे तुम जाना चाहते हो, आइदर बिजनेस करना है, आइदर जॉब करना है, ठीक है। उसी पैशन के बारे में आपसे अगर बात करने को कहा जाए तो आप कितनी बातें कर सकते हो, बहुत सारी, क्योंकि वो आपका पैशन है, ठीक है। तो लिंक्डइन में सबसे पहले तो आपको अपना बायो अपडेट करना होता है, ठीक है, कि कुछ ऐसा लिखो कि आपको पढ़ के आपके बारे में पता चल जाए। फॉर एग्जांपल मेरा लिंक्डइन खोल के देखना, उसमें लिखा है, मैं बताऊंगा नहीं, खुद ही देख लेना क्या लिखा है, उसको देख के ये समझ में आता है कि मैं कौन हूं, देख लेना एक बार खोल के, ठीक है। अब उसके बाद आप नीचे आ जाओ, आप एजुकेशन की बात कर ले, जैसे मैंने रिज्यूमे को बोला है, ठीक है, कि अगर मैं एमबीए कर रहा हूं तो मैंने वहां पे सिर्फ एमबीए लिख रखा है। मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि एमबीए में मैंने क्या क्या सीखा, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जिस पे मैंने काम किया, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा, नहीं लिख सकता क्या? उसके बाद मैं हैशटैग्स यूज कर सकता हूं बहुत सारे अपने अबाउट सेक्शन में, ठीक है। जिस भी फील्ड में मुझे जाना है उस फील्ड से रिलेटेड मैं पोस्टिंग कर सकता हूं। अब मैं जॉब ढूंढ रहा हूं तो उसी बारे में पोस्टिंग कर लूंगा, अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि currently I'm looking for a job of a graphic designer, but these are the challenges I'm facing. Currently companies are not offering this, not doing this. अगर मैं ये सब ये चीजें भी मेंशन करता हूं ना लिंक्डइन में, तो अल्टीमेटली मैं उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं ना। और सोचो कोई इंसान अगर किसी पोजीशन में हायर करने जा रहा है, उसने वही कीवर्ड लगाया तो तुम्हारी पोस्ट ऊपर ही आएगी, तुम्हारा प्रोफाइल ऊपर आएगा। इट्स दैट सिंपल। आप हायरिंग करते समय क्या-क्या बेसिक स्किल देखते हैं? बेसिक स्किल देखो, ये डिपेंड करता है, और तो सवाल यही है, बैठो, ये डिपेंड करता है कि किस प्रोफाइल के लिए हायर करना है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम हायरिंग अ वेब डेवलपर, तो अब वेब डेवलपर में मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, आइदर आई एम हायरिंग फॉर अ फ्रंट एंड, आइदर आई एम हायरिंग फॉर बैक एंड। अब अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हायर कर रहा हूं तो फिर अब मुझे उसमें क्या चाहिए कि उसे कैपकट आता हो, उसे एडोबी आता हो, उसे ये आता हो, तो ये तो मुझे पहले डिफाइन करना पड़ता है कि मुझे स्किल सेट चाहिए क्या, समझे। अलग अलग प्रोफाइल में अलग अलग चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्स के लिए हायर कर रहे हैं तो फिर एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप बहुत रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, कि मैं किसी के सामने आपको खड़ा कर रहा हूं तो आप दिखो, लगो कुछ, वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, एटिकेट होने चाहिए आप में। तो जिस प्रोफाइल में आप जा रहे हो हर प्रोफाइल में स्किल सेट अलग अलग चाहिए होता है, ठीक है। और बताइए, बस ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आई फेल्ट लवली टू कम टू Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir.